Hello student, how are you today? Today I am going to teach you a new topic, that is relationship between drift velocity and electric current. Today we have already done the expressions of what is electric current and drift velocity in my last video lectures. Now I am going to drive a relationship between drift velocity and electric current. For this, let's see first of all diagram. In the diagram part we have a conductors whose area of cross section is A, length is L, and the free electron is E. When this conductor is connected to the battery having positive terminal, this and negative terminal, and the current whenever pass through this one, then electric field we are applying across the conductor is along this side from positive to negative directions. Now, we know that the free electron will move with drift velocity. Free electron will move with the drift velocity from right to left side. Okay, whenever electric field is applied. तो जितना बैटरी का पॉजिटिव चार्जेस होगा, पॉजिटिव चार्ज will move from this side from positive to negative, and negative charge means free electron will move from right to left side. So now we will find that consider the conductors of length. Consider the conductors of length L and area of cross section A. And what is the volume of the conductors? तो बेटे इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ. ठीक है. Then after the numbers of free electron in a conductor is number of free electrons कितने आएंगे? That is n into area into volume of the conductors. Okay. N numbers of free electron into the volume of conductor. So that NaN means volume. Now we have to find the values of total charge. बेटे करंट निकालना है तो आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम. तो चार्ज हमने निकालेंगे. तो चार्ज कैसे निकालेंगे? चार्ज क्या आएगा? Q इज इक्वल टू क्या होता है? N नंबर क्या आएंगे? नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज NaL into E. ठीक है. इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय देयर total numbers of free charge in volume. So NeAN. So this is the value of charge. अब हम फाइंड करेंगे टाइम. तो टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा? Lecture T is the time. T is the time taken by the free electron to cross the length of conductor with the drift velocity. With the drift velocity मान लीजिए इसको कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए from one end of the conductors to the another end of the conductor of length L, and the electrons move with the drift velocity V. तो बेटे अगर हमने टाइम फाइंड करना है, लेंथ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी बोथ गिवन, देन वी हैव टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी. सो नाउ यू हैव वैल्यू ऑफ चार्ज भी है, टाइम भी है, करंट आ जाएगा. करंट का फॉर्मूला क्या आता है? Q upon T. द वैल्यू ऑफ Q upon T. तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, Vd जो होगा वो ऊपर आ जाएगा, एंड फाइनल एक्सप्रेशन इज I is equal to NeAVd, where Vd is the drift velocity. N is free numbers of electrons, number of electrons, and A or area of cross section, and this is the last relationship between electric current and drift velocity. Okay, buddy. So let's start next topic. That is electron mobility. तो बेटे electron mobility क्या है हमारे पास? Electron mobility is that the mobility of free electron in a conductor is the drift velocity acquired by free electron per unit strength of applied electric field. मतलब हमारे पास बेटे क्या होता है, ये कंडक्टर्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे whenever we are applying applied electric field. वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएगी. ठीक है. अब उनकी कितनी वेलोसिटी होगी? When we have applied electric field, that is called as electron mobility. Electron mobility is represented by mu. Electron mobility is represented by mu. Mu क्या आएगा? Drift velocity acquired per unit strength of applied electric field. ठीक है. So Vd upon E represents the electrons mobility. बेटे मोबिलिटी होता क्या है? मोबिलिटी होता है मॉब. मॉब किसको बोल देते हैं हम? भीड़ को. ठीक है. तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ होगी, जितने उनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड करेंगे व्हेन वी आर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उस मॉब को बोल देंगे इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी. So it is represented by mu, which is Vd upon E.
where E represents applied electric field, V is the drift velocity. We also know that expressions of drift velocity क्या थे बेटे? Drift velocity का expression थे E into applied electric field torque and relaxation time upon m. If we substitute this value into this equation, then we have this one. E से electric field cancel हो जाएगा. Then you will get this one expression. So expression number 1 and 2, these two represents expression for free electron mobility. These two expressions represents the expressions for free electrons mobility. Okay, अगर आपको पास एक रिलेशन आ जाए बेटे, that is drive the relation between free electrons mobility and electric current, तब हम क्या करेंगे? Let's see. We also know that drift velocity का expression VD का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए. VD का वैल्यू क्या है बेटे? VD is equal to mu into E. उस वैल्यू को आपके पास एक करंट रिलेशन किया था मैंने अभी, दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ से निकाल के वैल्यू उसमें पुट कर दो, जो आपके पास बनेगा ना, फिर लास्ट एक्सप्रेशन बनेगा इलेक्ट्रिक करंट I is equal to NEA mu E. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी. ठीक है बेटे. सो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक डेफिनेशन पूछते हैं, जहाँ फिर इसके ऐसे यूनिट्स क्या आएंगे वो पूछ सकते हैं. दिस इज सिंपल 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन, नथिंग मोर देन दैट. लेट्स स्टार्ट नाउ. ऐसे यूनिट्स ऑफ मोबिलिटी क्यों क्या आएंगे अब निकाल लो. VD अपॉन E होता है. VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं बेटे? मीटर पर सेकंड. और E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थे? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ. सो वोल्ट पर यूनिट लेंथ मतलब वोल्ट पर यूनिट मीटर, लेंथ यूनिट्स मीटर होते हैं ना, वोल्ट ओवर मीटर इज द ऐसा यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मीटर मीटर ऊपर चला जाएगा, वोल्टेज इनवर्स हो जाएगा. सो मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स एंड पर सेकेंड इज द ऐसे यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी. ओके बेटे. सो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ. What is the Ohm's law? You have already done in class of 10th standard also, and in this plus 2 standard also we have this topic, Ohm's law. So it states that if physical conditions like pressure, temperature remain unchanged, then electric current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference. So जितना वैल्यू वोल्टेज का होगा उतना उसमें क्या आएगा? इलेक्ट्रिक करंट आएगा. So V proportional to I and V is equal to IR. Okay, so this expression represents the Ohm's law. Now, for ohmic resistor, the graph between V and is straight line. So conductors which obey the Ohm's law have straight line graph. Okay, if we draw the graph between V and I, then this straight line shows that V directly proportional to I. And for this straight line curve is for ohmic conductors. The conductor which obey the Ohm's law, we call it as ohmic conductors. Now we have here R is called resistance. R is equal to V over I, and ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज Ohm. and Ohm का वैल्यू कितना आएगा बेटे? वोल्ट पर एम्पियर. वोल्ट पर एम्पियर इज द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस. नेक्स्ट पार्ट इज दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस होती क्या बेटे? रेजिस्टेंस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज एक कंडक्टर्स. इस कंडक्टर्स में पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तो कंडक्टर्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स मूव करते हैं तो वो आपस में कोलाइड होते हैं, कोलिजन होती है. तो जब कोलिजन होती है उनके बिटवीन में तो क्या प्रोड्यूस होता है? हीट. तो हीट प्रोड्यूस के कारण दैट वी कॉल इट इज अ हीट प्रोड्यूस. दैट इज व्हाई द V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है, वो हीट प्रोड्यूस होती है जिससे एनर्जी का क्या होता है? लॉस. उस लॉस ऑफ एनर्जी को हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस. ठीक है. सो collision between electron proton inside the conductors and it produces heat as a resistance. So this is the topic we have, Ohm's law. Next हम करते हैं very important topic that is called failure of Ohm's law. Let's start. So let's start next topic. My next topic is that failure of Ohm's law. But exam में ये question अक्सर आ जाता है. It's of 2 marks questions. Okay. And let's explain what is the failure of Ohm's law. We know that Ohm's law is not a fundamental law of nature. Okay. Many times it fails.
When V is not directly proportional to I, then we call it is fail. And when it is directly proportional to V proportional to I, then we said it is obey the Ohm's law. So we have special three cases in which the V is not directly proportional to I. So it is the failure of Ohm's law. Let's start the first part. The first part is that potential difference may vary non-linearly with the current. अब हमारे पास क्या होता है बेटे, सपोज हमने एक कंडक्टर्स ले लिया, ठीक है, उसमें जब हम करंट को फ्लो करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी, सो वी नो दैट V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. व्हाई? बिकॉज जितना वोल्टेज होता है बेटे, देखिए, लुक एट दिस ग्राफ नंबर फिगर नंबर 8. फिगर नंबर 8, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I फॉर स्मॉल टाइम, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ वोल्टेज अप टू दिस, अप टू दिस. सो जब तक क्या होता है, बैटरी का वोल्टेज स्मॉल है तो प्रोपोर्शनल टू करंट आ रहा है, ठीक है. बट जैसे ही हम इसका बैटरी का क्या करते हैं, उसके वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, एट रीचिंग अ पर्टिकुलर लेवल, देन वोल्टेज तो इंक्रीज होता है बट करंट इंक्रीज नहीं होता. व्हाई? बिकॉज ज़्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, उसके अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव आयंस होके अंदर कोलिजन होती है एंड इट प्रोड्यूस हीट एनर्जी, और हीट प्रोड्यूस होने के कारण there is loss of energy. So loss of energy in the form of heat, so that V is not directly proportional to I. ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है अप टू 0 to A. R का वैल्यू क्या आएगा? कांस्टेंट. बट A से ऊपर तक क्या आएगा? R की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, so that V is not directly proportional to I. तो इस केस में ओम्स लॉ क्या हो जाता है? फेल हो जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ फेलियर ऑफ ओम्स लॉ. अब हम स्टडी करेंगे सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट होगा हमारे पास वेरिएशन ऑफ करंट विद पोटेंशियल डिफरेंस में डिपेंड अपॉन साइन. साइन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन. डिपेंड अपॉन साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड. तो बेटे क्या होता है, हमारे पास होता है एक पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है. पीएन जंक्शन डायोड्स में क्या होता है बेटे कि सबसे पहले हमारे पास एक होता है और दो टर्मिनल्स होते हैं बेटे पी एंड जंक्शन डायोड्स में. जब पॉजिटिव को हम पॉजिटिव टर्मिनल्स में और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल्स में लगाते हैं, वी कॉल इट इज फॉरवर्ड बायस. तो फॉरवर्ड ये पी एन जंक्शन क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है. पीएन जंक्शन एक सेमीकंडक्टर है. जब उस पर हम बैटरी का पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे टर्मिनल लगाते हैं, वी कॉल इट इज फॉरवर्ड बायस. बट व्हेन द टर्मिनल इज इंटरचेंज, पॉजिटिव नेगेटिव का और नेगेटिव पॉजिटिव पे लगा देते हैं, तब हमारा बन जाता है ये रिवर्स बायस. इन दोनों ही केस में हम देखते हैं V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं V और I का, तो बेटे देखिए V इज इंक्रीज up to a certain voltage, okay, then I is not increased as proportional to V. तो 0 टू लेके यहाँ तक आप देखेंगे तो V is not directly proportional to I, और उसके आगे भी आप देखेंगे करंट इंक्रीज linearly but even the voltage is not increased. Okay, so in this case of forward bias and in case of reverse bias also, the current is not making a straight line. V और I का ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन नहीं है. If it means that there is failure of Ohm's law. इवन जब हम इस केस में क्या होता है कि वोल्टेज सबसे पहले हम क्या देते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं. जब हम पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं तो ग्राफ अलॉन्ग पॉजिटिव साइन बन रहा है, पॉजिटिव साइन. बट इन केस ऑफ जब हम वोल्टेज को उसी वोल्टेज को नेगेटिव देते हैं, मतलब नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं, साइन उसका नेगेटिव हो जाए, तब उसका ग्राफ देखिए फिर से कितना चेंज आता है. So even the sign of potential difference is right. अगर उसका साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तब भी हमारे पास ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन नहीं होता. दिस इज आल्सो अनदर केस ऑफ फेलियर ऑफ ओम्स लॉ. अब हम करेंगे थर्ड केस. थर्ड केस हमारे पास है करंट में डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस. तो करंट में डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस. तो बेटे हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स होता है जिसको हम बोलते हैं थैरिस्टर्स. ये देखिए थैरिस्टर. तो थैरिस्टर के केस में क्या होता है बेटे, जब हम ग्राफ बनाते हैं वोल्टेज V एंड I के साथ, देन वोल्टेज इंक्रीजेस बट करंट नॉट इंक्रीजेस. सो करंट में डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस. तो
तो देखिए करंट जो होगा वो डिक्रीज है, ठीक है, बट V इज इंक्रीजिंग बट करंट इज नॉट इंक्रीजिंग लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज। और देखिए व्हेन वी इंक्रीज फ्रॉम A टू B, अब देखिए फ्रॉम A टू B कैसा है, वोल्टेज डिक्रीज एंड करंट इंक्रीज, voltage decrease and current increase. This is the special case of a thyristor in which the voltage decrease and current increase, and sometimes current decrease and voltage increase. So 0 to A voltage increase, current decrease, and from A to B it's voltage decrease and current increase. So these are the three failure cases of Ohm's law. ओके बेटे, तो ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे रेसिस्टिविटी के और उसके जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं। ओके, सो टिल देन, ओके बाय, थैंक यू।